INB मिनिस्ट्री उसको रेफर कर सकता है। शैलेश जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, एंड आई वांट टू गो टू राहुल ऑन दिस, दैट राहुल, राइट विंगर्स लाइक यू हु आर अ लिटिल लिबरल माइंडेड, why can't you tell the government that look, this agenda is not right, the way you are polarizing? You yourself said that, you know, this is a social cultural issue, but then there is an error in this entire narrative which is being created. Why can't people like you tell the government? Yeah, Neeluji, just two lines. One, as a rhetoric, you can call me Godse, I can tolerate that. But if you call me a liberal right-wingers, and we will never tolerate it. On a lighter note, because liberal is an absolutely, unacceptable word. On a lighter note, on a serious note, yes, heat and hatred should not be there, but criticisms and feedback will definitely be there. And it is up to the more seniors to engage. And remember, I know, even look at the IF Film Festival issue. He's a senior actor. He's quite a senior actor now in the Bollywood industry. Which senior Bollywood actor now you want to engage in this entire controversy? Exactly. People like, Shah Rukh Khan or Amir Khan were engaging. It's a good thing. And please remember, this right-wing reactions are not a monolith. He dignified response yesterday when he was in Kolkata. He said that there was so much of negativity on the social media. He gave a very dignified response. But even then, the right-wing trollers have not stopped. Look at the memes. Please remember, just one submission of criticism which is falling thick and fast on the social media. Is it really called for? Please remember, right wing is not a monolith. I mean, let us be very honest. There are, just like there are urban Naxals, there are urban Nazis too. But there are more informed voices on the right who keeps very moderate criticisms, who really criticizes on points and not on personalities or on their religion. I hope Bollywood will listen to those criticisms and take the positive feedback. And I hope really Bollywood movies do succeed, because we have all grown up watching them. But Rahul, what do you say of the criticism which is coming on the saffron bikini, the criticism which is coming on Deepika Padukone, the criticism which is coming on Shah Rukh Khan? What will you? Let me just quote Arun Jaitley once. Let me just quote the great Arun Jaitley, who rightly said public personalities need to have thick skin. They need to have a thick skin, and they need to take the criticisms in the stomach and the right. There is no other way, because it's an over-democratic world empowered by social media. So there will always be criticism from ultra-right or ultra-left. You have to maintain a sense of balance, and I hope Bollywood really wins, and that's going to be a great comeback for them. All the best for them. ओके, अब शैलेश जी से एक आखिरी रिस्पांस ले लेते हैं कि सर, आपने राहुल का देखा, उन्होंने अरुण जेटली को भी कोट किया कि ठीक है भाई, उनको फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेशन का। क्या कहेंगे अंत में इस पूरे विवाद को लेकर, क्या कहा जाए? अगर उनको सचमुच आपत्ति थी ना, तो वो सही तरीका अपनाते, वो सरकार से कहते। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रदर्शन हुआ, उनकी सरकार है, तो वो कहते कि अपनी अपनी सरकारों से कि भाई भारत सरकार से बात करो। उत्पात मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये चीप पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, और इसके जरिए पोलराइज करने की कोशिश भी करते हैं। वो शाहरुख खान को पकड़ा हुआ है, आमिर खान को पकड़ा हुआ है। उसकी आमिर खान की पिछली फिल्म को लेकर देखिए किस तरह कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, और फाइनली जो है, आप उसको फिल्म को पूरे पर्सपेक्टिव में देखते ही नहीं, आपने फिल्म में नहीं देखी। रही बात ये गाना, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर मैं सेंसर बोर्ड में होता तो मैं शायद इस गाने को उस रूप में पास नहीं करता, मैं होता तो नहीं करता। लेकिन उस तरह कोई वो अकेली फिल्म नहीं है जिसमें ये सब रिवील किया जा रहा है। अब पिछले 15-20 सालों से जैसे अमेरिकन हॉलीवुड की फिल्में हैं, उनकी नकल पे हम जो है जो अपने बॉडी को रिवील करना, सेक्सी सीन करना, किस करना, ये सब हम नहीं रोक रहे हैं। तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप रोकें ही रोकें, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो, और मोबाइल फोन होने के बाद लोगों की स्थिति ये है कि वो तो अब सेक्स ब्लू फिल्में भी देखते हैं, तो उसका क्या करेंगे? रोक तो सकते नहीं, क्योंकि उसमें रोक लगा नहीं सकते। आप रोक लगाते हो, दूसरे दिन वो दूसरे नाम से आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, इनको गहराई से सोचना चाहिए। उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश की गई। उसमें अगर रंग है, बेशर्म रंग है, तो वो बेशर्म रंग, बहुत सारे रंग है, और दरअसल वो बेशर्म रंग जो कहा जा रहा है, वो उसके सीन के बारे में है, उसके कपड़ों के बारे में है ही नहीं। जिस तरह से वो बेशर्मी से अपने आप को दिखा रहे हैं, बेशर्म रंग तो वो है, उस कपड़े में नहीं है। तो इसलिए जो हमारे सामने स्थिति होनी चाहिए, हमें एक सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्टिस्टिक फ्रीडम है, होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो रहने दो,
आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं रहना चाहते, वो कानून बना दो। मैं एक किसी देश के में का न्यूज देख रहा था, कहीं बाहर था, चैनल जाते जाते, तो उसमें न्यूज की जो एंकर थी, महिला थी, वो इतना सा हिस्सा, बाकी ये भी ढका हुआ है, मुंह के ये इतना सा हिस्सा से वो बोल रही थी, सब कुछ ढका हुआ था बुर्के में। वो भी किसी देश की है, वो उस देश ने ऐसा कर रखा है तो कर रखा है, चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ये कानून से कर दो ना। फिल्म इंडस्ट्री में तो इतना पैसा लगता है कि कोई वहां पर कानून तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। एक फिल्म को सबसे काटने जो में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस तरीके से समाज कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कि भाई अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतना कुछ ऑब्जेक्शनेबल है, तो सेंसर बोर्ड शांत बैठा हुआ है और बाकी जो अलग अलग राज्यों के मंत्री हैं वो अपने आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो एक अननेसेसरी, एक जो बिल्कुल विवाद जो नहीं होना चाहिए था, उस तरीके का विवाद खड़ा किया जा रहा है और समाज पर एक एजेंडा जो कि पॉलिटिकल एजेंडा है उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। समय खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच शैलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारा जो एंगल 360 का कार्यक्रम है सोमवार से शुक्रवार आप हमारे साथ देख सकते हैं। क्यू वाइब पर बने रहिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।